السلام علیکم، میں ہوں خان زمان اور آپ ہیں VIP انگلش گرامر بائی خان کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈجیکٹو کے بارے میں۔ ایڈجیکٹو وائڈلی یوزڈ الفاظ ہوتے ہیں۔ جس وقت بھی فکرے میں ایکسپینشن ہوتی ہے نا، جب ہم فکرے کو بڑا کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس وقت وی میک یوز آف دیز ایڈجیکٹیو اینڈ دا ایڈوربس۔ ایڈجیکٹیو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے آئیں گے ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ آئیں گے اور ان کو بڑھاتے جائیں گے، وہ فکرہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ لائک وائز ایڈورب جو ہے نا وہ آپ کے ورب کے ساتھ آئیں گے، ایڈجیکٹیو کے ساتھ آئیں گے، ایک اور ایڈورب کے ساتھ آئیں گے۔ سو ویری اسینشیل پارٹ آف اسپیچ۔ So adjective, as we have discussed earlier, these adjectives, they qualify a noun or a pronoun. Means they add meaning to a noun or a pronoun. In other words, we can say they tell us the merits or demerits of a noun or a pronoun. So adjective has got 3 degrees. There are 3 degrees of adjective. The first one is the positive degree. Positive degree, this is used for general description of a noun or a pronoun. Means if we don't want to compare a noun to another noun, at that time we use this positive degree. For example, if somebody says that he is a clever person, now Aslam is a clever person. Now I'm not going to compare Aslam to anybody else. I'm just telling something about Aslam. Likewise, if I say that Salma is a good girl, now I am telling something, a trait of Salma. So now not comparing Salma to any other person. So this is called, اردو میں سے کہتے ہیں عمومی بیان کے لیے، یعنی جب ہم we describe a noun or a pronoun in general، عمومی طور پر جب ہم کسی ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں بتائیں گے، اب اس میں ہمیں یہ نہیں کہ وہ اس کسی دوسرے کے ساتھ اس کا کیا ہے ایز کمپیئر ٹو somebody else، تو اس میں کیا ہے۔ سو یہ جنرل ہے۔ اس کے بعد دین کم دا کمپیریٹیو۔ کمپیریٹیو جو ہوتا ہے نا، اٹ از فار 2، 2 کے لیے ہوتا ہے بھائی۔ جس وقت 2 کے لیے ہم 2 میں یعنی اس کا اور اس کا 2 چیزوں کا کمپیریزن کرائیں گے، تو اس وقت ہم جو ہے نا مطلب ہے یعنی جب when there will be 2 things، اس وقت ہم کمپیریٹیو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو کمپیریٹیو ہوتا ہے نا، یہ جو پازیٹیو ڈگری ہوتی ہے، اگر اس کا سلیبل 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو اس کے ساتھ ہم مور کا لفظ لگاتے ہیں۔ اگر 2 سے کم ہے، سنگل سیبل ورڈ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہم آر یا ER کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے if your adjective is having E at the end of it، جیسا کہ لارج ہے، فار ایگزامپل لارج LARGE، سو اٹ از ہیونگ E، in this case we will add only R، larger. But if it doesn't have E at its end, so at that time we will use ER. For example, clever, cleverer, ER, addition of ER. This comparative degree, this has 3 uses. اس کے 3 استعمال ہیں۔ The first one is comparison of 2 things. 2 چیزوں کا جب آپ موازنہ کریں گے اس وقت کیا ہے؟ He is cleverer than his brother. This is the second comparative degree. It is followed by than, and it is not preceded by, we don't use article the in front of it. He is the cleverer than his brother, it is wrong. So right sentence is he is cleverer than his brother. Means that when we compare 2 things, we are going to compare 2 things. At that time the arrangement will be like this. The second thing is the choice of one thing between 2, from 2 things. This is the better of the 2. This type of sentence, it will be followed of the 2. After second degree, it will be followed of the 2. And in this case, we use article the in front of this second degree. جب ہم 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، suppose your brother 2 purses for you، اب آپ کی امی جو ہے نا she bought
two exactly equal in shape and price and make exactly alike purses for you and for your sister. तो अब क्या करेंगे आप, वो आपको कहते हैं कि टेक वन एंड गिव द अदर टू योर सिस्टर. अब आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको देखेंगे, इधर देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड अल्टीमेटली यू टेक वन. अब आप अगर इफ समबडी आस्क यू कि व्हाट वाज रॉन्ग विद अदर वन, इसके साथ क्या मसला था भाई, तो आप आंसर क्या होगा, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू. भाई आप पसंद अपनी अपनी है, मैं आई लाइक दिस वन आउट ऑफ दिस टू, ये मुझे ये पसंद है. सो तो इसकी निशानी याद रख लेना. तो आफ्टर टू आखिर पे होगा, इससे पहले आपने दा लगाना है. अच्छा, अब एक और किस्म की फ़िक्र होते हैं कि जितना इतना, मीन कि जितनी मेहनत करोगे इतने नंबर ज़्यादा लोगे, जितना ऊपर जाओगे इतनी ठंडक होगी, जितनी जेब में ज़्यादा पैसे होंगे इतने खुश होंगे. तो अब ये वाली फिक्र होते हैं ना, ये दो उसमें आते हैं. इसके लिए निशानी याद रख लेना कि सेकंड डिग्री से पहले भी दा लगता है, इसमें दो सेकंड डिग्री लगती हैं, इससे भी पहले दा लगाएंगे और इससे पहले भी दा लगाएंगे. अब अगर केस इफ समबडी सेज हायर यू गो कूलर इट इज़, ये गलत हो गया, इट इज़ रॉन्ग. अब द करेक्ट सेंटेंस इज द हायर वी गो कामा द कूलर इट इज़, यानी इन बोथ एट बोथ प्लेसेज यू विल दिस सेकंड डिग्री विल बी प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द. ये होगा. ये वो एडजेक्टिव हैं जो हम बनाते हैं. अब आप ये याद रखें कि कुछ ऐसे टू या मोर देन टू सिलेबल वाले अल्फाज हैं. सिलेबल कहते हैं एक मुकम्मल आवाज़ को, अपर कंप्लीट साउंड, जैसा कि ब्यूटीफुल, इट हैज़ 3 सिलेबल्स. सो इस किस्म के जो अल्फाज हैं ओबीडियंट. अब ये जो होते हैं ना, ऐसे अल्फाज जो है ना, इनकी जो डिग्री नहीं बनती, से कंपैरेटिव नहीं बन रही होती, तो अब वही एक यूज़ ऑफ मोर एंड विद सुपरलेटिव मोस्ट. सो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. या ये ऐसे नहीं होता कि ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुललेस नहीं कहोगे. यू विल नॉट से कि ब्यूटीफुलर एंड द ब्यूटीफुललेस, बट रादर यू विल से मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. सो अब एक और कुछ अल्फाज हैं बने बनाए, दिस आर मतलब प्री मेड एडजेक्टिव्स हैं, और इनकी एक निशानी ये है ना कि इनके आखिर पर IOR आता है, जैसा कि सीनियर, जूनियर, these are followed by टू. इनके बाद आप टू लगाते हो. ये यहाँ पर भी आएंगे ना, मतलब दिस क्लाथ इज़ इन्फीरियर टू दैट क्लाथ, दैन नहीं लगाना. यहाँ पे आप दैन नहीं लगाओगे. इसमें जितने भी अल्फाज हैं, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, ये सब को जो है ना, इनके बाद में दे ऑल विल बी फॉलोड बाई आर्टिकल टू, प्रीपोजिशन टू लगाओगे साथ. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द सुपरलेटिव. सुपरलेटिव इज़ फॉर मोर देन टू, मीन के जिस वक्त टू से ज़्यादा चीज़ें होंगी उस वक्त आप सुपरलेटिवली यूज़ करेंगे. ये एक एक्सट्रीमिटी होती है, इंतहा होती है, मतलब यानी दिस डिग्री एक्चुअली डिस्क्राइब द एक्सट्रीम ऑफ समथिंग, इंतहा उस चीज़ की, परफेक्शन. अच्छा, अब इसमें क्या हम करते क्या हैं, हम वही ऐड STREST. If the adjective is having E at its end, for example large, then we will use ST. But if it is not having E, like clever, so it will be EST will be added to it. Cleverest. See the arrangement. He is the cleverest boy of the class. The things to be remembered are, this superlative degree is preceded by article the and followed by of, then. Collective noun or plural.
it will be followed, the superlative adjective will be followed by plural or it will be followed by collective noun. Then there are certain words which themselves they show extremity. वो खुद बखुद वो बता रहे होते हैं कि मतलब they are telling us something perfection or something extreme of thing. Like for example, circular, round, perfect, complete, universal, worldwide. ये जो फ़िक्रे हैं ना, ये खुद ही एक्सट्रीम को बता रहे होते हैं. सो इनके साथ जो है ना आपने बस जस्ट मतलब फ़िक्रा यूज़ करेंगे. ही एन्जॉयज़ द वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन. ये एक बंदा है ना, उसकी शोहरत पूरी दुनिया में है ना. अब हम यहाँ नहीं कहेंगे कि ही एन्जॉयज़ द मोस्ट वर्ल्ड वाइड, नहीं लगाएंगे, मोस्ट नहीं लगाएंगे. वजह कि ये जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड खुद इट इज़ इटसेल्फ द सुपरलेटिव, सो इट विल नॉट बी प्रीसीडेड बाई मोस्ट. वजह इसकी ये है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शुड नॉट बी डबल्ड. ये याद रखें, ये करेक्शन में आता है. बी वगैरह में जब आप चलते हैं तो उसमें करेक्शन में ये बात आती है कि वहाँ पे वो डिग्री को डबल कर देते हैं. हाँ, ही इज़ असल में इज़ मोर क्लेवरर दैन अमजद. ना मोर क्लेवरर, अब यहाँ पे ना वे गलत है, ये अरेंजमेंट गलत है क्योंकि मोर लगा के अब हम काट देंगे. जहाँ पे देखें ना मोर क्लेवरर है तो मोर नहीं लगना चाहिए बिकॉज डिग्री डबल हो गई है. इसी तरह अगर वो करें ना कि मोस्ट परफेक्ट, अब वो भी गलत है. अब इसमें मोस्ट परफेक्ट अगर लग जाता है क्योंकि ये डिग्री पर ये परफेक्ट, ये सुपरलेटिविटी को शो कर रहा है. सो इट शुड नॉट हैव मोस्ट इन द बिगिनिंग. अच्छा, अब इसके बाद जो है ना ये एक जनरल सी बात आ गई. एक और बात है कि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ना, कौमियतें जो होती हैं ना, मसलन पाकिस्तानीज़ हो गए, हिंदूज़ हैं, इंडियंस हो गए, ब्रिटिश हो गए, तो ये इनको ये जो कि प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, लिहाजा ये प्रॉपर, इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. ये जो होते हैं ना, इनको कैपिटल में आपने लिखना होता है और इससे पहले आप दा लगाते हैं. ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात है. अभी आज इस वीडियो में इतना कुछ है. नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इसमें अभी तक एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बातें हैं जो अभी बतानी है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ दीज एडजेक्टिव. जब हम फ़िक्रे में एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो वो कैसे लगते हैं. कुछ एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, कुछ उसके बाद में आते हैं. फिर कुछ तरतीब होती है कि अगर 2-3 एडजेक्टिव एक फ़िक्रे में आ रहे हैं, इफ़ देयर आर 2 और मोर एडजेक्टिव बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस, सो व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ दोस एडजेक्टिव्स, उनका ऑर्डर क्या होगा. सो टुमारो इंशाअल्लाह द 6th lecture will be still on these adjectives. Thank you very much.